Yeah. So you have Faisal and Mariam who are so involved in the film. They are literally sleeping, eating, breathing, eating the film. When you're working with such kind of people, I feel you automatically, that at least that happened with me, that I automatically became even more involved in the film. See, this was anyway going to be my debut film. It was a great moment of my showcasing my career, my acting, my looks, my everything. But when you are in touch and you're working with such kind of people like Faisal and Mariam who are only eating, breathing the movie factory, somehow that brushes off you in a very, very, very positive manner. If you are giving it your 100%, you start giving it your 200%, your 250%, because I feel that they bring that out in you. And that's exactly what happened with me. Faisal brought that out in me, and I think that's the mark of a great director, that I'm sure Faisal is going to become a great director because he has that in him. He has that, he makes you understand what he wants, and it just happens. Like if when you work with him, you know exactly what I'm talking about. As an actor, again, so good, because when you see somebody doing so well on the screen, and when you see your co-actor performing that well, it kind of makes you also perform that much more better, because you see him doing something so good and you also want to do it, you also want to match up to it. It's a very normal thing, and that's exactly what happened. So it was such a great combination of director, actor. He handled everything, and everything went very smoothly. In fact, I still remember that when we had to decide on our clothes and everything, Mariam and Faisal, they came over to my place, and we sat for about 5 hours removing my wardrobe, seeing exactly what would go with what scene. And Faisal was doing all of that. He didn't send an assistant to do it. Like, that's how involved he is in the project. That's how involved Mariam is in the project, That those are the kind of people I got to work with. So I feel I think I'm very blessed that I was a part of this film. सेट पर बहुत सीधे तरीके, सहजता से, साधारण तरीके से अपनी बात कहते हैं लोगों को, और बाकी वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, और इतनी मतलब सद्बुद्धि के साथ, इतनी सहजता के साथ वो पूरे फिल्म में अपनी मतलब एक भूमिका निभाते थे कि कैसे मतलब एज एन एक्टर, को एक्टर एक अलग से उनकी एक होती थी इमेज कह लो, या उनकी पार्टिसिपेंट जिस हिसाब से होते थे, या आप बतौर एज ए डायरेक्टर, और दोनों में मुख्तलिफ एक अंतर रहा है। मतलब मैंने जैसे कहा, जितने अच्छे इंसान हैं उतने अच्छे एक्टर और उतने ही काबिल डायरेक्टर भी हैं। तो मतलब इतना अद्भुत तालमेल देखने को मिलता नहीं है कहीं पर। तो वो डायरेक्शन बड़े कूल डायरेक्टर है। एज अ डायरेक्टर, एक्टर, मुझे उन्होंने नरेशन दिया फिल्म का क्या है, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे वो को एक्टर भी हैं और हीरो है फिल्म के, और वाकई वो मतलब अद्भुत काम किया है उन्होंने इस फिल्म में, जिसका नाम है फैक्ट्री। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पूरी फिल्म उन्हीं के कंधे पर वो लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा एक अच्छे इंसान है वो, उतने ही अच्छे एक्टर है। देखो, एक्टर सब अच्छे होते हैं लेकिन इंसान बहुत कम अच्छे होते हैं, और ये नपातुला जो वेल बैलेंस्ड जो मामला है वो फैज़ल भाई में देखने को मिलता है। और चूँकि वो अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है, तो जो भी काम करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं, और फिल्म मेकिंग में ईमानदारी चाहिए होती। तो इनसे बेहतर फिल्म मेकिंग की सेंसिबिलिटी को कोई जान नहीं सकता, जिस तरह से ये जानते हैं भली भांति, और उसको उतारते हैं, अपने जो उनके भीतर है उसको बाहर उतारने में उनका विज़न भी एकदम क्लियर रहता है, पूरे क्लैरिटी के साथ कि उनको क्या चाहिए, हमसे उनको क्या चाहिए, सब कुछ पता चलता है, नपा तुला रहता है। और वाकई मुझे फैज़ल भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी दिली तमन्ना है कि जब तक वो फिल्म डायरेक्ट करते रहे मैं हमेशा उनके साथ रहूं, उनके साथ काम करूं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें फैज़ल भाई जब डायरेक्ट करते थे तब वो एक्टिंग का जो टोपी एक्टर का जो हैट है वो नहीं पहनते थे, और बतौर एज ए डायरेक्टर
तो वो उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर, दोनों बिल्कुल अलग थलग थे और वो बहुत अच्छे से निभाते थे। तो मतलब हमको ऐसे प्रतीत होता था कई मर्तबा कि ये डायरेक्टर कोई और इंसान है और को एक्टर जो हीरो है हमारे वो कोई और इंसान है। ऐसे प्रतीत होता था कि ये कोई अलग अलग है दोनों, क्योंकि दोनों की मतलब एज एन डायरेक्टर जब वो काम करते थे, एज एन एक्टर काम करते, दोनों में उनकी अलग तरीके से अप्रोच होता था काम को लेकर के, को एक्टर को लेकर के बात करना, कलीग्स को लेकर के बात करना, और उनकी विनम्रता जो है सेट पर, उसका तो मैं कायल हूँ। वाकई बहुत मतलब ज़मीनी डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति को मतलब मैं तो शत शत नमन करूँगा कि वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं ये। फैजल सर एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही इज़ एक्टर्स डिलाइट। और बहुत सारे टाइप के एक्टर्स होते हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि पहले अपना इनपुट देते हैं और फिर वो देखते हैं क्या डायरेक्टर कर रहा है। लेकिन मैं जो हूँ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरा काम है एक्ट करना, और जो डायरेक्टर काम है वो जानता है कि उसको वो सीन कैसे डायरेक्ट करना है। ही इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू द राइटर, to the script reading and everything. So I think director is the main person in when it comes to filmmaking, when it comes to being a television and everything. So I just I'm an director's actor. So मेरे लिए बस ये था कि सर क्या चाह रहे हैं मुझसे। तो he was very clear what he wants from me, and even during the scene if I was little थोड़ा इधर उधर था सीन से, तो he would very politely, very softly say कि रिबू अगर हम इसको ऐसा करेंगे ना तो क्या कहता है, ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये अपने एक्टर को कंफर्टेबल फील कराना, इट इज़ दैट्स व्हाट ही डिड एंड आई हैड टू डू नथिंग। मुझे ना अपना दिमाग लगाना था ना कुछ करना था। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू हिम वॉट ही वॉज सेइंग एज अ डायरेक्टर, एंड माई जॉब एज एन एक्टर इज टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम मी। सो आई जस्ट केप्ट इट वेरी शॉर्ट फ्रॉम माई साइड कि हाँ, मुझे बस अपने डायरेक्टर को वो देना है जो वो चाह रहे हैं। एंड लकीली आई डोंट थिंक सो वी टुक मेनी टेक्स फॉर अ सीन। इट जस्ट दैट कि हाँ, आपके एंगल्स अलग होते हैं या आपका क्लोज एंड मास्टर उसके अंदर आपको करना ही पड़ेगा। But otherwise, we were very. He just asked me what to do, and I gave my all, and he was quite happy. So I think he's wonderful as a director, especially for actors. Because कभी-कभी actor जो है वो या तो excited हो जाते हैं या तो घबरा जाते हैं. But he kept me in a proper mood that how the scene could have been done. So yeah, I was very happy that he directed. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा आशीष जी कि फैज़ल साहब के साथ काम करना तो बहुत बड़ी बात है, उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले भी काफ़ी काम किया, लेकिन जो मैं फैज़ल साहब के साथ मैंने काम किया एज ए आर्टिस्ट और वो डायरेक्टर थे इस पूरी फिल्म में, इतना कोऑपरेटिव, इतना पोलाइट नेचर मैंने अभी तक किसी डायरेक्टर का नहीं देखा। इतने अच्छे से किसी भी सीन को समझाते थे, और ये भी नहीं होता था कि कई बार रीटेक्स होते थे तो कई बार डायरेक्टर इरिटेट हो जाते हैं या यूनिट पूरी इरिटेट हो जाती है। तो ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा एक दो बार मेरे साथ भी, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया। बड़े प्यार से, बड़े स्मूथली उन्होंने मुझे उस सीन को करवाया और वो सीन पहले से बहुत बेहतर गया। देखिए, ये किसी एक सपने से कम नहीं है, चूँकि जो इनकी फ़िल्म आई थी, मेला फिल्म आई थी आमिर साहब की, फैज़ल साहब की, अपने समय की बड़ी एक हिट मूवी रही है, बहुत अच्छी मूवी रही। आज भी आती तो मैं पूरी फिल्म देखता हूँ। उनके कैरेक्टर से मेला में बड़ा प्रभावित था मैं। और इस फिल्म में काम करने की जहाँ तक बात है, फिल्म में काम करने के बाद तो आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। डायरेक्टर एंड एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर, और सर ने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किया फिल्म को। कहीं भी उनके मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात कैसे मैं बोलूँ, लेकिन सच ये है कि बहुत अच्छा डायरेक्ट किया उन्होंने। मेरे पास उन्होंने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया था सारे आर्टिस्टों का कि कब किनको आना है, कब किनको जाना है, होटल का लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद मेरा इतना अच्छा हेल्प किया था कि मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ा था। और हम सब ने मिल के फैक्ट्री फिल्म को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, और होप कि मैं खुद चाहूँगा कि उनके साथ में जल्दी से जल्द दूसरा प्रोजेक्ट करूँ। और थैंक यू सो मच फैज़ल सर कि आप हमें उस लायक समझे कि मैं उनका एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम कर पाऊँ आगे भी। बहुत कुछ सीखना है आपसे सर, और जल्दी ही आप दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, जिसमें मैं चाहूँगा कि शुरू से ही आपसे जुड़ा रहूँ, क्योंकि
मैंने पूरी फिल्म नहीं कर पाया था, अब चाहूँगा कि पूरी फिल्म करूँ। शूटिंग के दौरान मुझे फैजल भाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली कि वो मंसूर खान सर के असिस्टेंट थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है। तो एक जो क्वालिटी है वो जो मुझे पता चली सेट पे कि ही इज़ अ वेरी गुड टेक्नीशियन। आई थिंक ही वाज अ वेरी गुड असिस्टेंट ऑन द सेट्स व्हेन ही वाज एन असिस्टेंट। उनका जो सेंस है सिनेमा का टेक्निकली वो बहुत सही है। ही नोज ऑल हिज कंटिन्यूटी, ही नोज apt about everything on the set. मतलब he used to sleep at 2 or 3 in the morning and used to wake up or used to be ready by 7 o'clock for a shift. So one thing what I noticed about Faisal Bhai is that he is a good actor, no doubt about it. But I think he is very good director. I think he is very good director. He is very much clear what he wants in his shots. So he was very clear about his shots, about everything, about his continuity. I think he didn't have any continuity supervisor on set. We were like, he had just 2 assistants in his team, which were like a trainee. But he was everything prepared. Like he used to remember everything, a small bit also, even continuity, even what kind of set he want, what kind of shots he want. Everything. And I know that whomever he had assisted, the director might have been happy with him. He was so clear about his shots, about his everything, about his about dress and everything, continuity, even on the set, what lines he want. He used to say, I just want this much, I want to cut here, I won't go forward, I want this much, that's it, cut it here, I don't want to go ahead. Like he had already edited the film in his mind. Like every frame by frame was planned in his mind that I want to shoot this film here, this and that. And it is a awesome thing which I have seen in him. I really appreciate that. फैजल सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत क्रिएटिव माइंडेड है, बहुत डिटेल में काम करते हैं, एक एक चीज़ नोट बनाते हैं, हर एक चीज़ का। सुनील इधर से ये लगेगा, इधर से ये शॉट मेरा ऐसा है, और काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड, एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करना, और काफ़ी कूल माइंडेड है। घर जैसा बात करना, घर जैसा रहना, कोई स्टार्टअप नहीं, एक नॉर्मल डाउन टू अर्थ आदमी जैसा बात करना, और क्रिएटिव काम निकालना उनसे कोई सीखे। बहुत डिटेल में एकदम बहुत पोलाइटली काम निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। फैज़ल सर के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इन्जॉय भी किया। हम साथ में फिल्म का जब उनका मिक्स चल रहा था तो हम करीब 15 से 20 दिन साथ में काम किए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे, 8:30 9 o'clock स्टार्ट करते थे टिल 4:30 5 o'clock तक। और फैज़ल सर का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, जॉली नेचर के हैं, काफ़ी अच्छा काम करने में मज़ा आया। और साथ में काफ़ी दिन काम किए तो उनका हमारा बॉन्डिंग ऐसा हो गया था, फैमिलियर बॉन्डिंग हो गया था काफ़ी। मैं अपने काम को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होते थे। हाँ चलो ऐसा करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छा मूवमेंट था काम करके। तो आई होप कि फ़िल्म अच्छा करेगी।